بھارتی میڈیا نے مودی سرکار کی خوشامد میں اپنی نااہلی کا ملبہ امریکہ پر ڈال دیا۔ ارنب گوسوامی نے کہا کہ امریکہ نے جہاز کے انجن کی فراہمی میں تاخیر کی۔ تیجس کے انجن امریکی جنرل الیکٹرک کے بنائے ہوئے ہیں۔ امریکی حکومت نے اگلی جنریشن کے انجن کی ڈیلیوری میں سستی کی۔ جنرل بخشی بھی پیچھے نہ رہے، سندور 2 کا شوشہ چھوڑ دیا۔ بولے معلوم نہیں کب سندور 2 دوبارہ بھڑک اٹھے، ہمیں انجن 2 سال پہلے ہی مل جانا چاہیے تھے۔ دوسری جانب دبئی ایئر شو میں بھارتی لڑاکا طیارہ گرنے پر بھارتی عوام کا شدید رد عمل۔ بھارتی ایئر چیف امر پریت سنگھ کو عہدے سے فوری ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ بھارت کے گودی میڈیا نے ایک مرتبہ پھر بھارت کی نااہلی چھپانے کے لیے تیجس طیارہ حادثہ امریکی انجن پر ڈال دیا۔ جنرل ریٹائرڈ بخشی اور ارنب گوسوامی طیارہ حادثے کی ذمہ داری امریکی انجن پر ڈال کر بھارت کی دفاعی کمزوری چھپانے کی کوشش میں لگے رہے۔ ارنب گوسوامی نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے GE-404 انجن کی تاخیر سے فراہمی سے بھی بھارت کی دفاعی تیاری میں خطرناک خلا پیدا کر دیا۔ تیجس امریکی جنرل الیکٹرک کے بنائے ہوئے انجن سے چلتا ہے اور جنرل الیکٹرک بھارت کا کبھی دوست نہیں رہا۔ General Electric has not been India's friend. It has tried to slow things down, and it cannot be without the role of the American government. The American government has tried to slow down the delivery of next-gen engines for Tejas, and because America sees the LCA program and the Tejas as a threat. جنرل بخشی نے کہا کہ آپ نہیں جانتے کہ کب سندور 2 دوبارہ بھڑک اٹھے۔ GE-404 انجن ہمیں 2 سال پہلے مل جانا چاہیے تھا۔ ہم نے $1 ارب نقد ادا کیے ہیں، ابھی تک ہمیں صرف 2 انجن ملے ہیں۔ 3 Apaches were coming to us. They came via Turkey. Turkey stopped them and sent them back because it was apprehensive that maybe a conflict could start with Pakistan. And it was trying to help Pakistan between America and Turkey. بھارتی سرکار اور اس کا گودی میڈیا اپنی ان حرکات کی وجہ سے نہ صرف جگہسائی کا سبب بنتے ہیں بلکہ بھارتی عوام کو بھی اصلی مسائل کی طرف سے ہٹاتے ہیں۔ اس ذاتی، سیاسی اور معاشی مفاد کی خاطر بھارت ایک خطرناک بند گلی میں داخل ہوتا جا رہا ہے۔ قومی اسمبلی کے 6 اور صوبائی اسمبلی کے 7 حلقوں میں سیاسی دنگل سجنے کو تیار ہے۔ 13 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہوگا۔ قومی اسمبلی کے حلقہ این 18، 96، 104، 129، 143 اور 185 پر الیکشن ہونے جا رہا ہے، جبکہ صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی پی 98، 115، 116 پر ضمنی الیکشن ہے۔ پی پی 73، 87، 203 اور 269 پر بھی ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ این 18 ہری پور میں عمر ایوب کی اہلیہ شہرناز اور مسلم لیگ نون کے بابر نواز خان میں امیدوار ہیں، تو این 129 میں نون لیگ کے حافظ نعمان اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ارسلان احمد میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ این 96 میں طلال چودھری کے بھائی بلال چودھری امیدوار ہیں۔ نواب شیخ وسیر آزاد حیثیت میں مضبوط امیدوار ہیں۔ این 104 میں راجہ دانیال اور آزاد امیدوار عدنان جاوید مد مقابل ہوں گے۔ پی پی 116 میں رانا ثناء اللہ کے داماد رانا احمد شہریار کا مقابلہ آزاد امیدوار اصغر علی قیصر سے ہوگا۔ ضمنی الیکشن کے لیے فوج اور سول آرمڈ فورسز تعینات ہوں گی۔ الیکشن کمیشن نے افسران کو مجسٹریٹ کے اختیارات تفویض کر دیے۔ انتظامات مکمل، کل پنجاب میں ضمنی انتخابات کا میدان سجے گا۔ متعلقہ حلقوں میں انتخابی سامان کی ترسیل گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی۔ قومی اسمبلی کے 6 اور صوبائی اسمبلی کے 7 حلقوں میں اتوار کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ پولنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک کسی وقفے کے بغیر جاری رہے گی۔ این 18 میں نون لیگ اور پی ٹی آئی میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ اس حلقے میں نون لیگ کے بابر نواز خان کے مد مقابل شہرناز عمر ایوب ہے۔ لاہور کا حلقہ این 129 بھی اہمیت کا حامل ہے، جہاں نون لیگ کے حافظ اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار محمد ارسلان میں جوڑ پڑے گا۔ این 96 فیصل آباد میں نون لیگ کے بلال بدر چودھری کا آزاد امیدوار ملک نواب شیر نصیر اور ارشد بیگ کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ فیصل آباد میں ہی حلقہ 104 میں نون لیگ کے راجہ دانیال ریاض اور آزاد امیدوار رانا عدنان جاوید مد مقابل ہوں گے۔ قومی اسمبلی کے حلقے 143 ساہیوال میں چودھری طفیل جٹ اور کرنل ریٹائرڈ زرار اکبر آمنے سامنے ہے۔ این 185 ڈیرہ غازی خان میں نون لیگ کے سردار محمود قادر، پی پی کے سردار دوست محمد کھوسا، آزاد امیدواروں میں مرید حسین اور اللہ بخش میدان میں ہیں۔ صوبائی اسمبلی کی جن 7 نشستوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے، ان میں فیصل آباد کی 3 سیٹیں بھی شامل ہیں۔ پی پی 98، پی پی 115 اور پی پی 116 کے علاوہ پی پی 73 سرگودا اور پی پی 87 میاں والی میں رائے شماری ہوگی۔ پی پی 203 چیچا وطنی اور پی پی 269 مظفر گڑھ میں عوام اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں گے۔ سخت سیکیورٹی کے دوران تمام قومی اور صوبائی حلقوں میں انتخابات سے متعلق سامان پہنچا دیا گیا ہے۔
है। पोलिंग के मौके पर सिविल आर्म्ड फोर्सेस और पाक फौज तैनात होगी। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान और वजारत दाखिला ने हुक्मनामा और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब के ज़मीनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस तैनात होंगी। सिविल आर्म्ड फोर्सेस दूसरे और फौज तीसरे दर्जे में होंगी। पुलिस ने भी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। 20,000 से ज़ायद एहलकार तैनात किए जाएंगे। और आईजी पंजाब का कहना है कि 2792 पोलिंग स्टेशंस में से 408 इंतहाई हसास हैं। 1032 को हसास करार दिया गया है। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस पर CCTV कैमरास की तनसीब मुकम्मल कर दी गई है। इंतखाबी सामान की तरसील महफूज तरीके से कर ली है, जबकि वोटर्स को हक़ राय दही के लिए पुरअमन और महफूज माहौल फराहम करेंगे। लाहौर की बात करेंगे तो लाहौर में हल्का NA 129 में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। मज़ीद तफसीलात रिपोर्ट में। लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का NA 129 में कल ज़िमनी इंतखाबात का दंगल सजेगा। हल्के की 29 यूनियन कौंसिल में 334 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 200 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। हल्के में कुल 17 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। हल्के में टोटल रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 5,28,414 है। 2,76,659 मर्द वोटर रजिस्टर्ड हैं, जबकि खवातीन वोटर 2,51,755 हैं। हल्के की अवाम अपने पसंदीदा उम्मीदवार की जीत के लिए पुरअज़म नजर आ रही है। अवाम ने कहा कि इस हल्के के बहुत से मसाइल हैं, ताहम वो उम्मीदगो हैं कि जो भी जीते उनके मसाइल हल करे। जो भी जीते हमें इससे उम्मीदें हैं कि जो भी काम करे अच्छा करे और हमारे लिए अच्छा पेश हो। भजन मान तो बहुत अच्छे आदमी, हल्के दे मिसाइल तो बहुत अच्छे करेगा। वो गैस का भी कह रहा आ जाएगा, सब कुछ वो कह रहा हो जाएगा। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए हैं। पुलिस और फौज के दस्ते तैनात किए गए हैं और 1000 से ज्यादा CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि ये नशिस्त मियां अजहर की वफात के बाद खाली हुई है। जनरल इलेक्शन में मियां अजहर ने 1,03,718 वोट हासिल किए थे, जबकि हाफिज नुमान ने 71,546 वोट हासिल किए थे। अब देखना यह है कि कल NA 129 में कौन मार्का मारता है। रेलवे की ज़मीन के मामलात में पब्लिक प्राइवेट शराकतदारी मॉडल अपनाया जाए। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान रेलवे के उमूर पर इजलास में हिदायत। रेलवे की बहाली, अपग्रेडेशन, दीगर उमूर पर सताइश। वज़ीर रेलवे और टीम की काविशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि रेलवे का निज़ाम मईशत और मवासलात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रेलवे निज़ाम की बहाली की तरफ उठाए जाने वाले इक़दामात लायक़ तहसीन है। रेलवे हुकाम की वजारती अमूर पर ब्रीफिंग। बताया इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल ट्रेन सर्विस जल्द शुरू होगी। कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान रेल मंसूबे पर भी इब्तदाई काम हो रहा है। हम की खातिर विफाक का साथ देंगे, अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं करेंगे, दहशत गर्दी के खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी किसी इजलास में जाने से इनकार नहीं किया। गंदुम से मुतालिक मीटिंग पर कहा था कि नया आया हूँ, NFC की मीटिंग में शिरकत करूँगा। नजरसानी करके जामे नेशनल एक्शन प्लान बनाना चाहिए। हमारे पास वसाइल की कमी है। बुलेट प्रूफ गाड़ियों के हुसूल में बहुत वक्त लग रहा है। विफाक वाजिबात दे तो पुलिस समेत तमाम शोबों में मजीद बेहतरी ला सकते हैं। हर मसले का हल मुज़ाकरात में है। सूबे को एतमाद में लेकर मसला हल हो सकता है तो हल कर लेना चाहिए। बानी PTI की रिहाई के लिए किसी से राबता नहीं है। मेरे बारे में जलसों में नामुनासिब जुमले इस्तेमाल किए गए, वालिद के साथ खड़े होने पर जेल में डाल दिया गया। आज मकाफाते अमल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा वो जानते थे कि इनको ना गिराया तो हमारी जगह नहीं बनेगी। सियासी इख्तलाफात का मयार मुकर्रर करना चाहिए। गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी का जवाब परफॉर्मेंस के बयानिए से देंगे। मरीम नवाज ने कहा कि वोट ना मिलने का डर हो तो कोई अच्छा काम नहीं किया जा सकता। लोग तजावुज़ात उठाने पर भी नाराज हुए। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने NDU के वफ्द का पुरतपाक खैर मकदम किया। मुलाकात में मरीम नवाज ने वर्कशॉप के शुरका को पंजाब हुकूमत के अवामी फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट और जारी इकदामात पर ब्रीफिंग दी। शुरका से खिताब करते हुए वज़ीर आला का कहना था कि पंजाब में बहुत कुछ कर चुके हैं और बहुत कुछ होने जा रहा है। दुनिया में पाकिस्तान और अवाम को बदनाम किया गया। मेरे बारे में जलसों में नामुनासिब जुमले कहे गए। वालिद के साथ खड़े होने पर जेल भी जाना पड़ा, मगर आज मकाफाते अमल है। उन्होंने कहा कि सियासी इख्तलाफात का मेयार मुकर्रर होना चाहिए। इल्जाम लगाने वाले सबूत भी पेश करें।
करे। मरियम नवाज ने माहौलियाती तब्दीली को हकीकत करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान की कोशिशों को आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है। उन्होंने बताया कि सरहद पार फसलें जलाने के असरात लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में स्मोक का बायस बनते हैं। वजीर आला ने कहा कि वोट न मिलने का डर हो तो कोई अच्छा काम नहीं हो सकता। तजावजात के खात्मे पर कुछ लोग नाराज भी हुए मगर मेरिट पर समझौता नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज का कहना था तंदूर जाकर रोटी चेक करने पर मजाक बनाया गया मगर दफ्तर में बैठकर सूरत हाल का जायजा लेना भी मुमकिन नहीं। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा ने पंजाब हुकूमत के फलाई इकदामात को सराहा। लाहौर में जमात इस्लामी के इज्तिमा बदल दो निज़ाम का दूसरा रोज़ अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने शुरका से खिताब में कहा कि बदल दो निज़ाम का मतलब ये है कि अब जागीरदारों का निज़ाम नहीं चलेगा। मुश्किलात के बावजूद इनकलाब का रास्ता नहीं रोका जा सका। इस्लाम में किसी सदर के लिए इस्तिस्ना नहीं है। 15 साल गुजर गए लेकिन इनकलाब का रास्ता कोई खोटा नहीं कर सका क्योंकि इज्तिमाइयत मुनज़्ज़म थी, चूंकि नौजवान इंटेक्ट थे। ये जमात इस्लामी मिडिल क्लास जमात है। जमात इस्लामी आम लोगों की तरह है। इसमें अमीर लोग भी हैं, इसमें मिडिल क्लास भी हैं, इसमें गरीब लोग भी हैं, इसमें मजदूर और किसान भी हैं। और ये सब जब मिल जाते हैं तो एक निजाम के तहत इसमें लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सी पार्टी है जिसमें जमहूरियत है, जिसमें डेमोक्रेसी है? वो पार्टी कभी भी अवाम का इख्तिदार कायम नहीं कर सकती। जो अपनी पार्टी में लोगों की राय का एहतराम कायम नहीं कर सकती, वो कैसे अवाम का इख्तिदार कायम कर सकती है? आज जमात इस्लामी ये ऐलान कर रही है कि जनमन इनकलाब के लिए, हकीकी इनकलाब के लिए, निजाम की तब्दीली के लिए हम तमाम पॉलिटिकल वर्कर को, पाकिस्तान के हर नौजवान को पैगाम दे रहा हूं, आए, ये जमात इस्लामी ये इंक्लूसिव है, ये आपको साथ लेकर चलेगी इंशाअल्लाह। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी अदालत से रुजू। जस्टिस मोहसिन अख्तर दयानी, जस्टिस एजाज इसाक, जस्टिस सिमन रिफत और जस्टिस बाबर सत्तार ने दरखास्त दायर की। अपील सुप्रीम कोर्ट भिजवाने की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 27वीं आईनी तरमीम के बाइस अपील आईनी अदालत में मुंतकिल की गई। 27वीं आईनी तरमीम आइन के खिलाफ है। आइन में इख्तियारात की तकसीम और हुदूद वाज़ेह है। तरमीम का इख्तियार अदलिया को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी इख्तियारात की तकसीम पर वाज़ेह हैं। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त आईनी अदालत में मुकर्रर करने के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त हाई कोर्ट के जजेस ने दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुतलका अपील दरअसल सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में आती है, इसलिए इसे दोबारा सुप्रीम कोर्ट ही को वापस भिजवाया जाए। अपील को 27वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत मुंतकिल करना आइन से मुतसादिम है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुक़निना, एग्जेक्टिव और अदलिया तीनों इदारे 1973 के आइन के तहत रियासत के बुनियादी सतून है। आइन हर इदारे के लिए इख्तियारात और हदूद वाज़े तौर पर मुतय्यन करता है, लिहाजा किसी आईनी तरमीम का इस्तेमाल अदलिया के इख्तियार महदूद करने के लिए नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद फैसले इख्तियारात की तकसीम और इदारों के दरमियान तवाज़ुन के हवाले से बिल्कुल वाज़े रहनुमाई फराहम करते हैं। 27वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त जस्टिस मोहसिन अख्तर दयानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान की जानिब से दायर की गई। 27वीं तरमीम के खिलाफ वकला का एहतजाजी कन्वेंशन। वकला जबरदस्ती हाईकोर्ट में दाखिल, गेट पर तैनात पुलिस एहलकारों के साथ धक्कम पेल की गई। सिंध हाईकोर्ट के बाहर भी वकला की हंगामा आराई, पुलिस एहलकारों को बाहर निकाल दिया। पुलिस ने वकला को अंदर जाने से रोका था और वकला को कन्वेंशन करने की इजाज़त नहीं थी। सिंध हाईकोर्ट के दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, दाखिली रास्तों पर पुलिस कमांडोज और एंटी राइट फोर्स के एहलकार तैनात किए गए हैं। और पीटीआई के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही से पंजाब बार काउंसिल के नौमुंतखब अरकान ने मुलाकात की है। मुलाकात में सेनेटर अली जफर और बैरिस्टर उमैर नियाजी समेत वकला रहनुमा भी मौजूद थे। पंजाब बार काउंसिल के नौमुंतखब अरकान ने इलेक्शन में भरपूर हिमायत पर चौधरी परवेज इलाही का शुक्रिया अदा किया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि तमाम पार्टी रहनुमा और वकला विंग मुत्तहिद होकर पाकिस्तान की सलामती के लिए मिलकर चले और दिलो जान से काम करें। चौधरी परवेज इलाही ने अरकान को मुबारकबाद दी और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर पंजाब बार काउंसिल के नौमुंतखब अरकान इमरान पाशा और हसन सरफराज भी समेत आमिर सईदरा, मुबशिर आवान, काशिफ जुबैर, राय सरफराज और दीगर भी मौजूद थे। पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन करप्शन स्कैंडल सामने आ गया। IMF ने 5300 अरब रुपए की करप्शन जाहिर की। हुकूमत ने 3 माह रिपोर्ट दबाए रखी। IMF के दबाव पर रिपोर्ट जारी की गई। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
اور اپنے ناظرین کو بتائیں بیرونی سرمایہ کاری نہیں آ رہی، چینی اور گندم سکینڈل سامنے آئے ہیں، 27ویں ترمیم ملک کو مزید معاشی نقصان پہنچائے گی۔ تیمور سلیم جھگڑا نے کہا کہ رپورٹ جاری کرنے میں تاخیر کیوں کی گئی، IMF نے آئینی ترمیم پر بھی سوالات اٹھائے ہیں۔ 5300 ارب کی کرپشن ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں، میرا خیال ہے دنیا کی تھرڈ ورلڈ کی تاریخ میں اتنی خراب رپورٹ جو ڈائریکٹلی پاکستان کے رولنگ رجیم کو، پاکستان کے رولنگ ایلیٹ کو ایکیوز کر رہی ہے۔ کن چیزوں کے لیے ایکیوز کر رہی ہے؟ یہ کرپشن میں انوالوڈ ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ایسی پالیسیز بناتے ہیں جس سے امیر اور امیر ہوتے ہیں، یہ رپورٹ کہہ رہی ہے، اور غریب کو غریب رکھا جاتا ہے۔ یہ جان بوجھ کے اس قسم کی رپورٹیں بناتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ پھر آپ نے اس رپورٹ کی ریلیز ڈیلے کیوں کی؟ آپ نے چھپائی کیوں؟ اگر IMF یہ نہ کہتا کہ یہ قسط کے ریلیز کے لیے شرط ہے تو EU کی رپورٹ کی طرح الیکشن پہ کامن ویلتھ کی رپورٹ کی طرح آپ چھپا کیوں رہے تھے؟ اس کا جواب چاہیے۔